मोस्ट ऑफ द टाइम्स आपके साथ भी, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट जब हम ऑनलाइन या ऑफलाइन टेस्ट सीरीज कंडक्ट करते हैं तो देखा जाता है कि द कैंडिडेट्स यूज्ड टू आंसर रॉन्ग क्वेश्चन इन दैट पर्टिकुलर एरिया. तो अभी भी जैसे हमने लास्ट सेशन में भी मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस वर there from the topic of fraud, misrepresentation etc. So उन्हीं एरिया से रिलेट करते हुए मिस्टेक etc. तक हम लोग जो है आज डिस्कशन करेंगे. लेट अस कितना एरिया कवर करते हैं, प्रोवाइडेड आज का जो हमारा क्वेश्चंस का जो ड्यूरेशन रहेगा दैट विल बी ऑफ अप्रोक्सीमेटली 1 आवर. ठीक है, और 75 तक के जो क्वेश्चंस है, क्वेश्चन नंबर 51 टिल 75, दैट वी विल ट्राई टू कवर टुडे, एंड बाकी के जो क्वेश्चंस होंगे वो हम कल के सेशन में खत्म करेंगे. So first question, as far as it is visible on your screens are, that is where the consent to an agreement is caused by fraud, coercion, fraud or misrepresentation, the agreement is voidable at the option of the party whose consent was so caused. Such right of said person is called as the right of a dissolution of a contract, the right of innovation, the right of repudiation, or the right of rescission of the contract. Yes, everyone. So Ravinderjit and Rishu has given me the answer. That is option number D should be there. That is the rescission of the contract. देखो हमारा section number 19. Section number 19 जो है वो इस concept की पूरी बात करता है. Whenever there is a contract which is vitiated by your fraud, coercion, or misrepresentation, then that contract is at the option of the party, and the party can go for the resignment of that contract. So option number D is the right answer. सभी लोगों ने सही जवाब दिया है. ठीक है. So coming to the next question, the next question is A, by misrepresentation leads B erroneously to believe that 500 mounds of indigo are made annually at A's factory. B examines the accounts of the factory, which shows that only 400 mounds of indigo has been made. After this, B buys the factory. The contract is not voidable, the contract is voidable, the contract is void, or the contract is illegal. Yes. सेक्शन नंबर 19 की एप्लीकेशन यहाँ पे आपको करनी है. क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति ने सामने वाले को मिसरिप्रेजेंटेशन किया और उसको कहा कि मेरी फैक्ट्री में 500 माउंट ऑफ इंडिगो जो है उसकी प्रोडक्शन होती है, लेकिन उसने एग्जामिन किए अकाउंट्स और एग्जामिन करने के बाद उसको पता लग गया कि 400 माउंट ऑफ इंडिगो जो है वो यहाँ पे बनता है, बट स्टिल ही बायज द फैक्ट्री. सो व्हाट इज द फेट ऑफ दिस कॉन्ट्रैक्ट? यस, ऑप्शन नंबर ए पे आप लोग आ रहे हैं, दैट इज इट इज नॉट voidable. द आंसर इज वेरी मच फाइन, बिकॉज एज फार एज the misrepresentations are concerned, if a person has a means of discovering the truth and he discovered the truth, on the basis of that the contract is not voidable. So as the explanation is also given, that is, the contract is not voidable when the party's consent was so caused as a means of discovering the truth with the ordinary diligence, and in the instant case B had the right or means B has the means of discovering the truth. अगला सवाल है, the question is, X induced Y to buy his lorry by falsely convincing him that it was in an excellent condition. On the very first journey, Y discovered a serious defect, but accepted X offers to bear half of the cost of the repairs. The lorry completely broke down on the next journey, and now Y claimed rescission. ऑप्शंस हैं, Y claim is tenable, दूसरा है X is liable for the damages and compensation as well, तीसरा है ऑप्शन नंबर C, Y's claim is not tenable, and last one is both A and B. Yes, so two of you have given me the answer, that is option number C. ठीक है,
एंड बाकी लोगों ने आंसर क्वेश्चन का आंसर अभी नहीं दिया। मैं दोबारा से एक बार सवाल आपके सामने पढ़ रहा हूँ। सवाल ये है कि एक्स ने वाई को किसी तरीके से फॉल्सली कन्विंस कर दिया कि उसकी लॉरी जो है वो एक्सीलेंट कंडीशन में है, लेकिन ऑन द फर्स्ट जर्नी वाई ने जो था सीरियस डिफेक्ट उस पर डिस्कवर किया, बट एक्सेप्टेड एक्स ऑफर्स टू बियर हाफ ऑफ द कॉस्ट ऑफ द रिपेयर। उसने उस लॉरी को खरीदने का जो ऑफर था उसको एक्सेप्ट कर लिया, बट उसने कहा कि जो भी खर्चा इसकी रिपेयर पे होगा उसकी हाफ कॉस्ट जो है वो एक्स देगा। The lorry completely broke down in the next journey. Now Y claimed recession. ठीक है, तो अगली जब नेक्स्ट जर्नी में वो व्यक्ति जाता है, सो पूरी की पूरी जो लॉरी थी वो टूट जाती है। वाई रिसेशन क्लेम करता है। ऑप्शन है कि क्या वाई ऐसा कर सकता है, दूसरा है कि एक्स इज लायबल फॉर द डैमेजेस एंड कंपनसेशन, तीसरा है वाई कैन नॉट क्लेम इट, ठीक है, वाइज क्लेम इज नॉट टेनेबल, एंड लास्ट वन इज बोथ A and B. So this is the question, and a few of you have given me the option, that is option number C should be there. The answer is very much fine. Option number C is the right answer, and I'm reading the explanation in front of you. Just hold on. The explanation to this question is that Y's acceptance to X offers of repairs amount to the final acceptance. ठीक है, and affirmation may be expressed or implied, and Y, after becoming aware of his right to resign, affirms the contract, and his right of rescission is lost. So इसका जर्नल सेंस में अगर आप एक मतलब देखें, तो जैसे उस व्यक्ति ने उस लॉरी की रिपेयर करवाने के लिए सामने वाले से हाफ ऑफ द अमाउंट मांगा और कहा कि नहीं, आई विल रिटेन दिस लॉरी, सो दैट इज द फाइनल एक्सेप्टेंस। एफर्मेशन मे बी एक्सप्रेस और इट कैन बी इम्प्लाइड, सो इट इज द एफर्मेशन ऑफ दैट कॉन्ट्रैक्ट। और दूसरा है कि वाई आफ्टर बिकमिंग अवेयर ऑफ द राइट टू रिसाइन, क्योंकि वो रिसाइन कर सकता था बट स्टिल ही affirms the contract, so his right of rescission is lost. ठीक है, वेरी गुड। अगले सवाल पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 है, the party to a contract whose consent was caused by coercion, fraud or misrepresentation to lose his right to rescission of the contract in which of the following circumstances? Number one, when a party instead of rescission affirms the contract. Number two, when he does not exercise his right of rescission of a contract within a reasonable time. Number three, when a third party acting in good faith acquires rights in the subject matter of the contract. And option number D, either A or B or C. तो दोबारा से एक बार आप सवाल को पढ़ेंगे and try to give me the right answer to this question. Question है that a party to a contract whose consent is caused by coercion, fraud or misrepresentation will lose his right of rescission of the contract in which of the following circumstances. एक व्यक्ति ने आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया, लेकिन आपने वो कॉन्ट्रैक्ट कोर्शन, फ्रॉड या मिसरिप्रेजेंटेशन के विशिएटिंग एलिमेंट्स की प्रेजेंस होने के बावजूद आपने जो है वो कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, तो आपका जो राइट ऑफ रिसेशन है, उस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करने का जो राइट है, वो किन परिस्थितियों में, किन सर्कमस्टेंसेस में खत्म हो जाता है। नंबर वन इज व्हेन द पार्टी इंस्टेड ऑफ रिसेशन अफर्म्स इट। दूसरा है व्हेन ही डज नॉट एक्सरसाइज हिज राइट ऑफ रिसेशन within a reasonable time, and तीसरा है when a third party acting in good faith acquires right in the subject matter of the contract. ठीक, so Kasaka has given me an answer that is option number D, that is either A or B or C, लेकिन the other people are silent to this question. देखो, as far as the right of rescission is concerned, जब भी किसी व्यक्ति के साथ फ्रॉड, कोर्शन या मिसरिप्रेजेंटेशन हुआ है, उस व्यक्ति ने फिर भी अगर कॉन्ट्रैक्ट मतलब साइन कर लिया, कॉन्ट्रैक्ट बना लिया, वो वॉइडेबल तो है, लेकिन उसका राइट ऑफ रिसेशन खत्म हो जाता है अगर बाद में वो उस कॉन्ट्रैक्ट को अफर्म करता है, जैसे कि अभी हमने पिछले सवाल में पढ़ा। नंबर टू, व्हेन ही डज नॉट एक्सरसाइज हिज राइट ऑफ रिसेशन विद इन अ रीजनेबल टाइम। तो आपने मान लो आज ही कॉन्ट्रैक्ट किया, आपने उस कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स को फॉलो करना शुरू कर दिया, लेकिन 10 साल के बाद अगर आप आते हैं कि नहीं, मैं कॉन्ट्रैक्ट को रिसाइन करना चाहता हूं, तो इट इज नॉट जस्टिफाइड। सो इफ ही डज नॉट एक्सरसाइजेस हिज राइट ऑफ रिसेशन विद इन अ रीजनेबल टाइम, तो उसका राइट ऑफ रिसेशन जो है ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ इक्विटी खत्म हो जाता है। तीसरा वाला है व्हेन द थर्ड पार्टी एक्टिंग इन गुड फेथ एक्वायर्स राइट इन द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। यहाँ पे भी पार्टी का राइट ऑफ रिसेशन जो है वो खत्म हो जाता है, बिकॉज तीसरे व्यक्ति का इंटरेस्ट है और उसने गुड फेथ में अपने इंटरेस्ट को एक्वायर किया है। सो द आंसर गिवन बाय कसक, दैट इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज द परफेक्टली राइट आंसर
ठीक है, तीनों चीजें जो थी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी हैं, दैट व्हाई इट इज सो। ठीक है, अगले सवाल पे आते हैं, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। The question is, which of the following provisions contemplates that in order to rescind a voidable contract, the party who is entitled to rescind it is required to communicate the same in the same manner and subject to the same rules as applicable to the communication of the revocation of proposal? सवाल दोबारा से पढ़ रहा हूं। Which of the following provisions, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का कौन सा सेक्शन है जो इस चीज की बात करता है, क्या इन ऑर्डर टू रिसाइंड वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट को जब आप रिसाइंड करने के लिए जाते हैं, द पार्टी हु इज एंटाइटल्ड टू रिसाइंड अ कॉन्ट्रैक्ट, मतलब जिसके ऑप्शन पे कॉन्ट्रैक्ट चल रहा था, इज रिक्वायर्ड टू कम्युनिकेट इन द सेम मैनर एंड सब्जेक्ट टू द सेम रूल्स एज एप्लीकेबल टू द कम्युनिकेशन और रेवोकेशन ऑफ प्रपोजल। तो कम्युनिकेशन और रेवोकेशन ऑफ द प्रपोजल के लिए जब आप सामने वाले व्यक्ति को अपना जो कम्युनिकेशन है वो मेड आउट करते हैं, तो उसी तरह से रिसेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए भी आपको जो है कम्युनिकेशन करना पड़ता है। ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के कौन से सेक्शन में कहा गया है? सेक्शन नंबर 64, सेक्शन नंबर 5, सेक्शन नंबर 66 एंड सेक्शन नंबर 67। यस, सुरेंद्र ने जवाब दिया है, बहुत अच्छे। सेक्शन नंबर 66 की बात की जा रही है। सेक्शन नंबर 66 ऑप्शन नंबर सी, दैट इज द परफेक्टली राइट आंसर। सभी लोगों ने ऑप्शन नंबर सी पे मार्क किया है। लिखा है दैट नो फॉर्म इज रिक्वायर्ड, no form is required by section 19 for recession. It is sufficient under 66 that the recession is communicated in the same manner and subject to the same rules as if it was a proposal. ठीक है, तो जिस तरीके से वो प्रपोजल भेजा गया उसकी हम रिसाइनमेंट करते हैं, कम्युनिकेशन मेड आउट करते हैं रिसेशन के लिए, उसी तरह से सेक्शन नंबर 66 जो है वो इसकी बात करता है कि whenever the contract is vitiated with such kind of elements, you can resign the contract, but the communication of resignment is to be communicated to the other party. ठीक है, वेरी गुड। अगले सवाल पे आते हैं, बहुत अच्छा है, सभी लोगों ने सेक्शन नंबर 66 राइट आंसर दिया है। कसक ने क्वेश्चन पढ़ने से पहले जवाब दे दिया। क्वेश्चन है दैट सेक्शन नंबर 19 कैपिटल ए वाज इंसर्टेड इन द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 in the year 1879, 1899, 1950 or son 2000. Yes, which of the following is the right answer? Everyone has given me the right answer, that is section option number B, that is 1899 की में आपका हमारा जो ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर सेक्शन नंबर 19 कैपिटल ए है, ये इंसर्ट हुआ। ठीक है, वेरी गुड। अगला सवाल, the legislative intent behind inserting section 19 capital A of the contract act was, section number 19 capital A आप सभी लोगों ने जिन्होंने क्लासेस लगाई हैं, जो अपने आप भी सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, आई होप यू ऑल आर अवेयर ऑफ द कॉन्सेप्ट बिहाइंड सेक्शन नंबर 19 कैपिटल ए कि अनड्यू इन्फ्लुएंस में पार्शियल रिसेशन और पार्शियल इन्फोर्समेंट के कॉन्सेप्ट को डालने के लिए सेक्शन नंबर 19 कैपिटल ए जो था वो इंसर्ट किया गया था, बिकॉज 1899 से पहले जो है हमारा अनड्यू इन्फ्लुएंस का कॉन्सेप्ट सेक्शन नंबर 19 के अंदर ही कवर होता था। एंड द कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइडेबल एंड इट कैन बी रिसाइंडेड और इट कैन बी इन्फोर्स, दो ही चीजें हो सकती थी, लेकिन 19 कैपिटल ए में उसको डालने की वजह ये थी कि आप अनड्यू इन्फ्लुएंस के बेसिस पे अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट्स बने हैं तो आप उसे पार्शियली रिसाइन करके पार्शियली इन्फोर्स करवा सकते हैं। सो एज फार एज द क्वेश्चन इज कंसर्न, वो इंटेंट पूछ रहा है 19 कैपिटल ए के पीछे क्या था। सो ऑप्शंस में है टू डिफरेंशिएट द वॉइडेबिलिटी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑन द ग्राउंड ऑफ अनड्यू इन्फ्लुएंस ऑन वन एंड and coercion, fraud or misrepresentation on another. Next one is to provide adequate compensation to the parties. Next one is to relieve the borrower against the oppressive terms of the contract imposed by the money lender. And last one is to enable the rescission of the contract. Yes everyone, which of the following is the right answer? इसका जो right answer है मैं आपको थोड़ा सा clue देता हूँ कि as far as the correct answer to this question is concerned, वो हमारे सेक्शन 19 कैपिटल ए की एक इलस्ट्रेशन है, उस इलस्ट्रेशन से आप बहुत इजीली उसको जो है फिगर आउट कर सकते हैं। यस, कौन सा इलस्ट्रेशन है सेक्शन नंबर 19 कैपिटल ए के अंदर जो इन ऑप्शंस के साथ मैच करता है? नंबर वन इज, पहला ऑप्शन है टू डिफरेंशिएट द वॉइडेबिलिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑन द ग्राउंड ऑफ अनड्यू इन्फ्लुएंस ऑन वन एंड एंड कोर्शन, फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन ऑन द अनदर, क्या ये पर्पस था? या फिर टू प्रोवाइड एडिक्वेट कंपनसेशन टू द पार्टीज, क्या ये था? टू रिलीव द बोरोअर अगेंस्ट द ऑप्रेसिव टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट इम्पोज्ड बाय द मनी लेंडर, क्या ये था?
and last one is to enable the complete rescission of the contract. ठीक है, सो सुरेंद्र मेरे पास इलस्ट्रेशन नंबर बी की बात की है सेक्शन नंबर 19 कैपिटल ए के अंदर इलस्ट्रेशन नंबर बी. देखो, as far as the illustration number B is concerned, it is related with the concept of borrowing of money on the higher rate of interest on the terms of undue influence which is applicable over the person. So इस सवाल में जो करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है, जो करेक्ट ऑप्शन है, कैसे का बी रेफर कर रहे हो, ऑप्शन नंबर बी. लेकिन सेक्शन नंबर 19 कैपिटल ए के पीछे जो ग्राउंड था वो बेसिकली ये था कि जब भी कभी कभी जो बोरोअर्स हैं, जो लोग पैसा उधार लेते हैं और इंटरेस्ट पे लेते हैं, तो उनको ऑपरेसिव टर्म्स से बचाया जा सके. जैसे कि मान लो आपने एक व्यक्ति से लोन लिया और दोबारा से आपको उसी व्यक्ति से अगर पैसा उधार लेना है, and that person applies the undue influence over you and he charges the higher rate of interest. ठीक है, तो at that point of time only the partial rescission and the partial enforcement of the contract can be there. So option number C जो है, that is the right answer to this question. आप लोग सभी लोग अपने अपने बेरिक्स में सेक्शन नंबर 19 कैपिटल ए की illustrations को एक बार देखेंगे. So thereby you will get to know that what is the actual legislative intent behind 19 capital A. I am reading it. Just hold on. The explanation is there. Yeah. So explanation to this question is there is a legislative intent behind section number 19 capital A was to relieve the borrower against the oppressive terms of the contract imposed by the money lender, but subject to the repayment to the lender, the money actually advanced with the reasonable interest. ठीक है, तो ये एक जर्नल सा एक प्रिंसिपल था जो हमारे 19 कैपिटल ए को एक 1899 में जब अमेंडमेंट करके हमने एक अलग से एक सेक्शन बनाया ताकि मनी लेंडर्स जो थे वो अनड्यूली इन्फ्लुएंस करके हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट या ज्यादा रीपेमेंट या जो पहले का पैसा उसने उधार दिया है उसका डबल मांगने की कोशिश करते थे. तो उन चीजों में अनड्यूली इन्फ्लुएंस करना, एक बोरोअर और जो लेंडर है दोनों के बीच में फिड्यूशियरी रिलेशनशिप है जिसके बेसिस पे अनड्यू इन्फ्लुएंस जो है वो अप्लाई हो सकता है. तो उसी को रेगुलेट करने के लिए 19 कैपिटल ए जो था वो ड्राफ्ट किया गया. सभी लोग अपने अपने बेरिक्स में इलस्ट्रेशंस पे जाएंगे और इलस्ट्रेशंस पे एक बार जरूर फोकस करेंगे. ठीक है, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. The partial rescission of a contract may take place under section 19 capital A, both or neither of A and B. Yes, partial rescission किस सेक्शन के अंदर किया जा सकता है? So as you people are referring me option number B, that is section number 19 capital A, perfectly fine. जब भी कोई कॉन्ट्रैक्ट कोर्शन, फ्रॉड या मिसरिप्रेजेंटेशन के आधार पे हो तो उसमें पार्शियल रिसेशन का कॉन्सेप्ट नहीं अप्लाई होगा. या तो कंप्लीटली कॉन्ट्रैक्ट रिसाइंड हो जाएगा या कंप्लीटली उसको हम इन्फोर्स कर देंगे. लेकिन व्हेन इट कम्स टू द अनड्यू इन्फ्लुएंस, जैसे अभी हमने ऊपर दो क्वेश्चंस में बात करी, तो पार्शियल रिसेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट्स, voidable contracts is can be there when it is the application of undue influence. ठीक है, coming to the next question. Question number 59 is there on our screens. An agreement may be void on the ground of a bilateral mistake as to the matter of Indian law, a fact, both A and B, only B but not A. An agreement may be void on the ground of a bilateral mistake as to the matter of Indian law, fact, both A and B, only B but not A. Yes. Which of the following is the most suitable answer to this question? Yes. Few of you are giving option number C. शिखा C कह रहे हैं, कसर K कह रही है, शालिनी B कह रही है. थोड़ा सा सेक्शन नंबर 20 को लेके जो कॉन्सेप्ट है उसमें क्लैरिफिकेशन की थोड़ी सी मुझे परेशानी लग रही है. यू कैन अगेन रिपीट दिस क्वेश्चन. ठीक है, इसको दोबारा से पढ़ो. सेक्शन नंबर 20 के ऊपर ये बात करता है. सेक्शन नंबर 20 के ऊपर कह रहा है, एन एग्रीमेंट मे बी वॉइड ऑन द ग्राउंड ऑफ अ बायलैटरल मिस्टेक एज टू द मैटर ऑफ इंडियन लॉ, फैक्ट, both A and B, or only B but not A. Yes, ऑप्शन नंबर B में और ऑप्शन नंबर D में आप लोग जो है कहीं पे
आने चाहिए, because as far as the Indian law is concerned, if any mistake of Indian law is there, it will not impact your agreement. It has no effect over the agreement. अगर agreement otherwise enforceable है, तो आप अगर mistake of Indian law का एक जिक्र रखते भी हैं, तो उसका कोई benefit नहीं होगा. That has to be regulated by section number 21. तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए तो है ही नहीं. ठीक है. दूसरी बात है बायलैटरल मिस्टेक ऑफ अ फैक्ट. तो इफ देयर इज अ बायलैटरल मिस्टेक ऑफ अ फैक्ट between the parties, bilateral mistake मतलब mutual mistake of the parties, so at that point of time section number 20 कहता है the agreement may be void. So option number A तो एलिमिनेट कर ही देना है. ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर डी में आपका जो आंसर है उसको आपको देखना था, और क्योंकि डी में लिखा हुआ है that only B but not A, so it should be more proper answer in the given option. So option number D should be right answer. An agreement is void when there is a bilateral mistake as to the matter of fact essential to an agreement. ठीक है. तो अगर दोनों लोगों को मिस्टेक के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई फैक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई मिस्टेक अगर लगा है and that matter of fact is essential to the agreement, the whole agreement is void and it cannot be enforceable. So the right answer should be option number D. देखो आप ऑप्शन नंबर अगर बी को मार्क करते हैं ना फैक्ट पे, तो कहीं ना कहीं इसका मतलब ये होता है कि आप इंडियन लॉ में भी कहीं वॉइडेबिलिटी के कॉन्सेप्ट को देखते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है. तो आपको ऑप्शन नंबर डी ही मार्क करना पड़ेगा. कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Yeah, so next question is A agrees to sell B a specific cargo of goods supposed to be in the way from England to Bombay. It turns out that before the day of the bargain, the ship conveying the cargo had been cast away and the goods lost. Neither party was aware of these facts. The agreement is valid, void, voidable, or unlawful. Yes. The agreement is void. Why? Because this whole phrase is according to the illustration of given in section number 20. Courtier versus Hastie is a case over this particular situation. कि अगर दोनों लोगों को ignorance of fact है कि जिस शिप में सामान आना है वो शिप ऑलरेडी डूब चुका है, so ultimately there is a mistake of fact and the fact is very much essential to an agreement. जो प्रॉपर्टी है या जो भी जिसको भी लेके वो एग्रीमेंट कर रहे थे और जो शिप है, both are the basic subject matter, basic essentials of the agreement, and because उसके related एक mistake है, so that whole agreement will be void. ठीक है, very good. Question number 61 है, section number 20 of the Indian Contract Act deals with the common mistake of fact, mutual mistake of fact, unilateral mistake of fact, or all of the above. Yes. कसक ने आंसर दिया ऑप्शन नंबर ए. वेरी गुड. देखो कंफ्यूजन बच्चों को होती है कॉमन मिस्टेक ऑफ फैक्ट समझने में और म्यूचुअल मिस्टेक ऑफ फैक्ट समझने में, लेकिन सेक्शन नंबर 20 की ऑब्जेक्टिविटी जो है वो थोड़ी सी डिफर कर जाती है, क्योंकि हम तीनों ऑप्शंस को अगर इलैबोरेट करें तो यूनिलैटरल मिस्टेक ऑफ फैक्ट सेक्शन नंबर 20 के अंदर कवर नहीं होता है, वो सेक्शन नंबर 22 कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर कवर होगा. When it comes to the mutual mistake of fact, the mutual mistake or common mistake, one is a genus and other one is the species. अगर मैं इस तरह से कहूं कि हमारा जो म्यूचुअल मिस्टेक का कॉन्सेप्ट है, इट इज अ जीनस एंड कॉमन मिस्टेक ऑफ फैक्ट इज अ स्पीसीज, और दोनों में अगर हमें ऑब्जेक्टिविटी ड्रॉ करनी हो तो सेक्शन नंबर 20 का जो प्रिंसिपल है वो कॉमन मिस्टेक ऑफ फैक्ट पे काम करता है कि अगर दोनों लोगों को सेम विषय के ऊपर, सेम फैक्चुअल चीज के ऊपर अगर मिस्टेक लगा है, तब वो सेक्शन 20 के अंदर जाएगा और एग्रीमेंट वॉइड होगा. म्यूचुअल मिस्टेक अलग तरीके से देखा जा सकता है, लाइक दिस. आप अगर ये देखें कि देयर इज मिस्टर ए एंड बी, देयर आर सर्टेन टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट व्हिच ए एंड बी हैज टू साइन. मिस्टर ए को कुछ पॉइंट्स पे मिस्टेक लग रही है और मिस्टर बी को कुछ अलग पॉइंट्स पे मिस्टेक लग रही है, सो इट मे बी अ म्यूचुअल मिस्टेक ऑफ अ फैक्ट. ये म्यूचुअल मिस्टेक तो है, बट इट इज नॉट अ कॉमन मिस्टेक, इट इज नॉट अ कॉमन मिस्टेक. और इसमें एक डिफरेंशिया आ सकता है कि दिस फैक्चुअल थिंग
may not be essential to an agreement or may be essential to an agreement. So इसीलिए मैंने कहा कि म्यूचुअल मिस्टेक ऑफ फैक्ट का जो प्रिंसिपल है वो जीनस है, और कॉमन मिस्टेक ऑफ फैक्ट का जो प्रिंसिपल है दैट इज द स्पीशीज ओवर हियर, एंड हेंस द राइट आंसर टू दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन शुड बी व्हाट? यस, ऑप्शन नंबर, व्हाट शुड बी द राइट आंसर? तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, तो व्हाट शुड बी द राइट आंसर? द राइट आंसर शुड बी ऑप्शन नंबर E. That is, a common mistake arises when both parties are mistaken about the same vital fact, though they are ad idem. For example, the subject matter of the contract has already perished, and in this case the contract is void. Section number 20 is concerned with the common mistake of fact. अब यहाँ पे एक और चीज का ध्यान रखना कि मान लो आपके क्वेश्चन में ऑप्शंस जो रखे हैं उसमें कॉमन मिस्टेक ऑफ फैक्ट ऑप्शंस में नहीं है, सिर्फ म्यूचुअल मिस्टेक और यूनिलैटरल मिस्टेक रखा गया है, तो आप म्यूचुअल मिस्टेक को मार्क करेंगे बिकॉज म्यूचुअल मिस्टेक भी कहीं ना कहीं सेक्शन 20 से रिलेट करता है, बट एज फार एज द गिवन ऑप्शंस आर देयर द मोर सुटेबल इज द कॉमन मिस्टेक ऑफ फैक्ट, बिकॉज उसी के आधार पे एक फैक्चुअल मिस्टेक अगर लग रही है पार्टीज को तो हमारा कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट जो है वो वॉइड हो जाता है. कमिंग टू द नेक्स्ट वन, when the mistake prevents the parties from reaching an agreement because one of the parties intend to contract about one thing and other about another. Mistake nullifies the consent, mistake negativates the consent, both A and B, or does not affect the consent. Yes, it nullifies the consent or it negativates the consent. Shikha is giving me the answer option number A. The others are giving option number B, that is negativates the consent. ठीक है, देखो ये दोनों ही प्रिंसिपल्स नलिफाइंग द कंसेंट और नेगेटिवेटिंग द कंसेंट जो है, इसको आपको थोड़ा सा इलैबोरेट अगर मैं इसको करूं, सो इट इज लाइक दिस. देखो इसको जनरली अगर हम समझते हैं दो चीजें कि मान लो मिस्टेक ऑफ फैक्ट होने के कारण से पार्टीज कंसेंसस एंड आइडम कर ही नहीं पाई. ठीक है, कंसेंसस एंड आइडम मींस मीटिंग ऑफ द सेम थिंग इन द मीटिंग ऑफ द माइंड्स ऑन द सेम थिंग इन द सेम सेंस. So if there is a mistake as to something because of which the parties are not able to reach at the same point of view, so ultimately it will have an impact over the agreement. So there is no consent basically. ना देखो आपने जब एक एग्रीमेंट किया, सो कुछ ना कुछ फैक्ट्स दोनों पार्टीज को क्लियर होने चाहिए, तभी कंसेंसस एंड आइडम का प्रिंसिपल जो है वो काम कर सकता है. और अगर पार्टीज को वो चीजें क्लियर हुई नहीं, सो हाउ दे कैन रीच टू अ कंसेंट. ठीक है, और दूसरा है कि पार्टीज में कहीं ना कहीं सब्जेक्ट मैटर को लेके कुछ ऐसी चीजें जो व्हिच आर वेरी मच एसेंशियल टू एन एग्रीमेंट, उसको लेके अगर मिस्टेक हो जाती है, सो इट विल बी द इम्पैक्ट ओवर द एग्रीमेंट आल्सो. So as far as this question is concerned, let me come to the explanation firstly. I hope it is visible to everyone that what is the explanation written. Let me make it more clear to you. Yeah. So इसमें जो आंसर है that is mistake negativates the consent should be the right answer. ऐसा क्यों है? Because explanation I am reading over here that when a mistake prevents the parties from reaching an agreement because one party intends to contract about one thing and other about another, the mistake negativates the consent because consent हुआ ही नहीं, तो how we can say there is a consent. दूसरा, however, when the parties are agreed about the same thing but the agreement is based on the fundamental mistaken assumption कि agreement तो एक ही चीज करने को हुआ है, subject matter दोनों के मन में क्लियर है, लेकिन कोई फंडामेंटल मिस्टेक हो गई इसी किसी चीज को लेके, तो वहां पे मिस्टेक विल नलिफाई द कंसेंट और वहां पे एग्रीमेंट जो है वो वॉइड हो जाता है. सो दिस इज द इंपैक्ट. ठीक है, इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस एवरीवन. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नेगेटिवेटिंग द कंसेंट एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नलिफाइंग द कंसेंट? दोनों का मतलब अलग है. नेगेटिवेटिंग द कंसेंट का मतलब कि जब दोनों पार्टीज अलग अलग चीजों को सोच के एग्रीमेंट कर रही थी, तो कंसेंसस एंड आइटम हुआ ही नहीं, और अगर नहीं हुआ तो मिस्टेक इज नेगेटिवेटिंग द कंसेंट. ठीक है, कंसेंट नहीं है मतलब नेगेटिवेटिंग द कंसेंट. दूसरा,
कि अगर पार्टीज ने एक सेम चीज को लेके एग्रीमेंट तो कर लिया, लेकिन कोई मिस्टेक हुई या फंडामेंटल मिस्टेक है किसी ऐसी चीज को लेके जो कॉन्ट्रैक्ट के लिए जरूरी थी, तो वहां पे मिस्टेक विल नलीफाई द कंसेंट। ये एक प्रिंसिपल जो है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल आपका सेक्शन नंबर 21 से रिलेट करता है। ए एंड बी मेक्स अ कॉन्ट्रैक्ट grounded on the erroneous belief that a particular debt is barred by the Indian law of limitation. The contract is void, voidable, void ab initio, or not voidable. Yes, very simple question. Very simple question. Section number 21 apply कर दो. If there is a mistake of an Indian law, the contract is not voidable. शालिनी आप कहां से ऑप्शन नंबर ए मार्क कर रहे हो? How is the mistake of law will create any impact over the agreement? The answer is no. Mistake of Indian law will not render the contract voidable. It will not render the contract voidable means what? That either the contract will be valid or the contract will be void. But voidability की जब बात आएगी तो वहां पे हमें देखना पड़ता है कि सेक्शन नंबर 23 अप्लाई तो नहीं हो रहा। इसका जनरल से एक तरीका समझ लो। Now you are giving option number C no. ठीक है, आप ये देखो कि आपने मिस्टर ए और बी ने एक कॉन्ट्रैक्ट किया है, कॉन्ट्रैक्ट में एक टर्म डाली है कि हम दोनों के बीच में अगर कोई भी पार्टी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट करती है तो 5 साल का समय दिया जाएगा केस करने के लिए। सो इज अकॉर्डिंग टू सेक्शन नंबर 21, मान लीजिए कि इस टर्म ऑफ एग्रीमेंट का आपके कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर क्या कोई प्रभाव पड़ता है? द आंसर इज no. ठीक है, the answer is no because the law of limitation will give you 3 years. So now you see the question that A and B makes a contract grounded on the erroneous belief that a particular debt is barred by the law of limitation. तो इसमें मतलब ये है कि मान लो एक व्यक्ति ने दूसरे को उधार दिया, उधार वापस नहीं आया, आपके पास 3 साल का समय था। ठीक है, 3 साल के समय के अंदर अंदर केस हो सकता था। अब दूसरी चीज है कि there is a contract on the erroneous belief that a particular debt is barred by any law of limitation. The contract is not voidable. The simple answer to this particular question is to be seen in reference to section number 21. That mistake of Indian law will not render the contract voidable. इसका contract को voidable हम नहीं मान सकते because ये parties के option पे नहीं है. It is not at the option of the parties. Rather, other sections can be referred over here. आप सेक्शन नंबर 28 देख सकते हो, सेक्शन नंबर 23 देख सकते हो, लेकिन सेक्शन नंबर 21 के आधार पे ये सवाल बेस्ड है और 21 कहता है कि ये चीजें voidable नहीं होती हैं। ठीक है, voidable नहीं होती हैं। Many times this particular question is being asked in the exam, तो इसका ध्यान रखना है। Directly the answer is to be seen in reference to section number 21 में पढ़ रहा हूं, यहाँ पे explanation लिखा गया है that in the instant case there was a mistake of the parties to the contract as to the application of the Indian law which makes the contract not voidable as per section number 21. It is not voidable. क्या होगा जब इन्होंने ये लिख दिया ना ये voidable नहीं है, मतलब पार्टीज के ऑप्शन पे कोई बात नहीं है, या तो एग्रीमेंट void होगा या वैलिड होगा या इन्फोर्सेबल होगा और कुछ नहीं हो सकता। सो हेंस इट इज नॉट voidable. सो द करेक्ट आंसर शुड बी ऑप्शन नंबर डी। इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस। सेक्शन नंबर 21 पढ़ना। 21 में देयर इज an illustration also. ठीक है, you must refer to that illustration. अगला सवाल है that which type of mistake may render the agreement void? इनमें से कौन सी मिस्टेक एग्रीमेंट को void कर सकती? Mistake as to the quality of the subject matter, mistake as to the attributes, mistake as to the substance and the essence of the subject matter, or all of the above. Which of the following mistake will render the agreement void? Yes, which of the following mistake will render the agreement void? ठीक है, कसक ने मुझे जवाब दिए ऑप्शन नंबर सी, that is mistake as to the substance or essence of the subject matter. ठीक है, वेरी गुड। देखो, as far as the quality of the subject matter is mistake as to the quality of the subject matter, that is not important because that is the erroneous beliefs. आप लोग अगर सेक्शन नंबर 20 को पढ़े होंगे, अभी रिवीजन जब आप लोग कर रहे हैं, तो 20 में there is an explanation that any erroneous belief over the subject matter is not a mistake
ऑफ फैक्ट, ठीक है। सो इट इज नॉट एप्लीकेबल। यहाँ पे कि वो इलिस्ट्रेशन आपको बार बार देखने को मिलता है। एग्जाम्पल की एक व्यक्ति ने एक पेंटिंग खरीदनी थी, लेकिन वो पेंटिंग मास्टरपीस नहीं था, लेकिन एक डुप्लीकेट कॉपी थी। उस व्यक्ति को लगा कि ये मास्टरपीस है, वो खरीद लेता है। तो वहां पे क्वालिटी ऑफ द सब्जेक्ट मैटर को लेके मिस्टेक अगर हुआ है तो उसको वॉइडेबिलिटी के कॉन्सेप्ट पे हम नहीं देखते, वो एग्रीमेंट वॉइड नहीं होगा, रेदर दैट एग्रीमेंट इज वैलिड बिकॉज erroneous opinions are not the mistake of facts. Mistake as to the attributes, the same kind of a thing. Mistake as to the substance or the essence of the subject matter को लेके अगर आपको मिस्टेक लग जाए तो एग्रीमेंट आपका वॉइड हो सकता है। सो ऑप्शन नंबर सी इज द वेरी राइट आंसर, वेरी राइट आंसर। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे से जितने भी लोग यहाँ पे बैठे हैं आंसर कर रहे हैं। So I am very glad that you people are very much comfortable with these subjects now. Coming to the next question. ठीक है, इसमें explanation लिखा हुआ है वैसे। There is a distinction between the mistake as to substance of the or the sense and mistake or quality of the, or the attributes. ठीक है, the former type can avoid the contract where the mistake of the latter type is not. So this is the explanation to this. अगले सवाल पे आते हैं। Again related to section number 20. Which of the following facts may be termed as essential to the agreement in reference to the section number 20? And identity और इनमें से कौन सी चीज जो है वो एग्रीमेंट के लिए जरूरी है? Identity of the parties, identity and nature of the subject matter of the contract, nature and content of the promise itself, or all of the above? Yes, बहुत सिंपल क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। ठीक है, सो यू पीपल आर गिविंग मी द आंसर, दैट इज ऑप्शन नंबर डी शुड बी देयर, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, देखो जब भी हम मिस्टेक के प्रिंसिपल को डिस्कस करते हैं, आई होप मोस्ट ऑफ यू द स्टूडेंट्स ऑफ फाउंडेशन कोर्सेज या जितने भी आप लोग हैं, सो सेक्शन नंबर 20 के अंदर डिफरेंट थिंग्स आर देयर, दैट मिस्टेक एज टू द नेचर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, मिस्टेक एज टू द आइडेंटिटी, मिस्टेक एज टू द सब्जेक्ट मैटर, मिस्टेक एज टू द डॉक्यूमेंट्स एटसेट्रा। सो एवरीथिंग हैज इट्स ओन इंपैक्ट, बट एज फार एज द कंसर्न्ड क्वेश्चन इज देयर, एक एग्रीमेंट के लिए कौन सी चीजें बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, जिसमें आइडेंटिटी ऑफ द पार्टीज क्लियर होनी चाहिए। ब्लैंकरन वाला एक केस हम लोगों ने डिस्कस किया होगा, अगर आप लोगों को याद है, दैट इज क्यूटी वर्सेस लिंडसे का एक केस था। आइडेंटिटी एंड नेचर ऑफ द सब्जेक्ट मैटर इज वेरी इंपॉर्टेंट, नेचर एंड द कंटेंट ऑफ द प्रॉमिस इज आल्सो इंपॉर्टेंट, सो ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर। वेरी गुड। अगले सवाल पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 66। select the false statement, select the statement which is not false। इनमें से आपको स्टेटमेंट देखना है जो गलत नहीं है, मतलब सही स्टेटमेंट आपको आइडेंटिफाई करना है। देखो कभी भी सवाल ऐसा है ना, select the statement which is not false, तो आपको लिखना है यहाँ पे not false हटा के ना ट्रू लिख लेना, ये करेक्ट स्टेटमेंट निकालना है। सेक्शन नंबर 20 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 will come into operation when the both of the parties to an agreement are mistaken, their mistake is as to the matter of fact or foreign law, the mistake which they are mistaken is minute to the agreement। yes, section number 20 कब apply होता है? when both the parties to an agreement are mistaken। next कह रहा है their mistake as to the matter of fact or a foreign law। तीसरा कह रहा है the mistake about which they are, the fact about which they are mistaken is minute to the agreement। yes, section number 20 कब अप्लाई होता है? ऑप्शन नंबर 1 and 2 पे मेरे पास आंसर्स आ रहे हैं। ऑप्शन नंबर 1 and 2 आर करेक्ट एंड द थर्ड वन इज नॉट करेक्ट, परफेक्टली फाइन। ऑप्शन नंबर ए जो है दैट इज द राइट आंसर। द एक्सप्लेनेशन इज रिटन ओवर हियर, यू कैन रेफर टू इट, पढ़ सकते हैं हम लोग। लिखा हुआ है दैट सेक्शन नंबर 20 विल कम इनटू ऑपरेशन व्हेन following conditions are complied with। number 1, when both the parties to an agreement are mistaken, बहुत ज्यादा जरूरी है common mistake of fact का होना। their mistake must be as to a matter of fact, law की mistake होगी, इंडियन लॉ की mistake होगी, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन फॉरेन लॉ को हम क्योंकि इंडिया में फैक्ट मानते हैं, तो फॉरेन लॉ की मिस्टेक को हम सेक्शन 20 के आधार पे देख सकते हैं। और तीसरा, the fact about which they are mistaken is essential to an agreement। तो ये तीन चीजें जो है सेक्शन 20 के ऑपरेशन को डिसाइड करती हैं कि whether the agreement will be void or not। ठीक है, so I hope everyone has given me the right answer। Very good। Coming to the next one। ठीक है, I believe and I assume that कि जैसे आप लोग, जैसे बहुत सारे क्वेश्चंस मैं देख रहा हूँ कि आज और as far as the contract sessions are concerned,
अपार्ट फ्रॉम द एरिया जो हमारा मिसरिप्रेजेंटेशन से रिलेट करता था वहां को छोड़ दें तो लगभग सभी लोगों ने बहुत इजीली एक सही तरीके से सही आंसर तक पहुंचने की कोशिश भी की है. सो दैट अल्टीमेटली बूस्ट योर मोरल आल्सो. आई थिंक सो. ठीक है. आई होप यू पीपल कैन आल्सो फील इट कि आप लोगों को जब ये लगता है कि नहीं मेरा आंसर जो है वो ठीक हो रहा है, so that ultimately boosts your confidence that yes I can do it. Coming to the next question, थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है. पहले हम इसको पढ़ेंगे फिर इसको हिंदी में एक्सप्लेन करता हूँ फिर उसके बाद सही आंसर पे आएंगे. और देखो जितने भी लोग हैं some of you may be very much comfortable with the English, some of you may not be. ठीक है. तो those who are not comfortable with the English, और ये कुछ ऐसे लोग हैं जिनको इजीली समझ में नहीं आता है कि सवाल अगर बड़ा सवाल है तो समझना कैसे है, तो ट्राई टू ब्रेक इट इन पार्ट्स एंड translate in Hindi. Only then we can understand that what is the real thing which is being asked in the question. Question है आपका, Mr. X knew on account of his adverse criticism of some members of the theatre that he would not be allowed to be present at the first performance of a play at a theatre. A ticket was obtained for him by one of his friends without disclosing that it was for him. But the defendant, the managing director of the theatre, refused him the admission on the night in question. Mr. X sued him for the breach of contract. सवाल है कि एक व्यक्ति जिसका बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म है कुछ एक लोगों के से, और कुछ एक लोगों ने मतलब उसका बहुत सारा क्रिटिसिज्म किया जिसके कारण से उस व्यक्ति को थिएटर में आने के लिए मना किया. तो और कहा कि ये व्यक्ति उस दिन जब भी शो होगा तो थिएटर में मौजूद नहीं होगा. तो उसके एक दोस्त ने उसके लिए एक टिकट खरीदा और रात को जब वो उसने उस अपने जिसने उस थिएटर में जाना था उस व्यक्ति को टिकट हैंडओवर किया, वो वहां पे जाता है लेकिन वहां के मैनेजिंग डायरेक्टर ने उसको आइडेंटिफाई कर लिया और उसको वहां पे आने नहीं दिया. ही रिफ्यूजेस हिम टू गेट इनटू दैट पर्टिकुलर थिएटर. सो अब मिस्टर एक्स ने ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के लिए केस किया है. सो हमें ये देखना है कि क्या ऐसा हो सकता है या नहीं. Options है managing director was liable for the breach of contract. Mr. X was entitled to claim damages and compensation. Managing director was not liable for as there is no contract between him and the theatre. And last one is none of the above. Yes, stranger to contract का principle apply कर रहे हैं. ठीक है. ये सवाल देखो, ये सवाल कोई सपोजिशन बेस्ड नहीं है, कोई assumption बेस्ड नहीं है. देयर इज अ केस लॉ. ठीक है. इस केस लॉ को मैं यहाँ पे अभी इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ता हूँ. ऑप्शन नंबर सी जो था वो इसका राइट आंसर है. दैट द मैनेजिंग डायरेक्टर वाज नॉट लायबल एज देयर इज नो कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन हिम एंड द थिएटर. मतलब देयर इज नो कॉन्ट्रैक्ट, स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट का प्रिंसिपल यहाँ पे अप्लाई हुआ. लेकिन साथ के साथ आइडेंटिटी ऑफ द पार्टीज को लेके देयर इज अ मिस्टेकन थिंग. सो वहां से सेड वर्सेस बट का एक केस था. उस केस के जो बेसिक रैशनल है मैं उसको यहाँ पे पढ़ रहा हूँ. जस्ट गिव मी फ्यू सेकंड्स. या आई होप इट इज विजिबल टू एवरीवन. या लिखा है वेयर द आइडेंटिटी ऑफ वन पार्टी इज ऑफ द वाइटल इंपॉर्टेंस. व्हेन द आइडेंटिटी ऑफ वन पार्टी इज ऑफ द वाइटल इंपॉर्टेंस टू द ऑफरर, a mistake as to the identity will prevent an agreement from arising. कि जब आपके लिए सामने वाले की आइडेंटिटी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो और आइडेंटिटी को लेके मिस्टेक लग जाए तो एग्रीमेंट अराइज नहीं हो सकता. इन द इंस्टेंट केस there was a mistake as to the identity of the parties which is a fact essential to an agreement. Thus there is a no contract between Mr. X and the theatre. क्योंकि उसने जो टिकट खरीदी वो खुद नहीं खरीदी, तो थिएटर वाले जो लोग थे वो तो किसी और व्यक्ति के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, उसको टिकट दिया है. मिस्टर एक्स को तो डायरेक्टली टिकट नहीं दिया. एंड बिकॉज ओवर हियर द आइडेंटिटी ऑफ अ पार्टी इज वेरी मच इंपॉर्टेंट बिकॉज उसका क्रिटिसिज्म है थिएटर के अंदर, उसको नहीं आने देना है. सो देयर इज अ नो कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन मिस्टर एक्स एंड द थिएटर. देयरफॉर मैनेजिंग डायरेक्टर वाज नॉट लायबल. Hence, because of the mistake as to the fact essential to an agreement will render the agreement void. सेक्शन नंबर 20 के ऊपर सेड वर्सेस बट का केस था जिसमें मैनेजिंग डायरेक्टर की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे फिक्स नहीं की गई. सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर. ठीक है. सो सिर्फ रविंदर जीत और मेरे ख्याल से शालिनी ने ऑप्शन नंबर बी कहा था. ठीक है. लेकिन द अदर्स हैव गिवन मी द ऑप्शन नंबर सी. ठीक है. आई होप रविंदर जीत एंड शालिनी यू आर क्लियर विद द इशू
कि यहाँ पे मिस्टर एक्स जो है वो लायबल क्यों नहीं है, बिकॉज थिएटर वाले लोगों ने जब टिकट दिया तो वो मिस्टर एक्स को दिया ही नहीं है, और क्योंकि यहाँ पे मिस्टेक एज टू द आइडेंटिटी ऑफ द सब्जेक्ट मैटर है और उस व्यक्ति की आइडेंटिटी एग्रीमेंट के लिए जरूरी है वहां पे, तो हेंस मैनेजिंग डायरेक्टर इज नॉट लायबल। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, केस का नाम याद रखिएगा सेट वर्सेस बट, जिस केस में थिएटर वालों की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी। ठीक है, क्यों नहीं थी? क्योंकि उन्होंने मिस्टर एक्स के साथ एग्रीमेंट किया ही नहीं। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल अगेन थोड़ा सा बड़ा है, इसको पढ़ते हैं क्या लिखा है। दैट मिस्टर जेम्स अपॉइंटेड मिस्टर सैमुअल टू लुक आफ्टर हिज कल्टीवेशन एंड हिज अफेयर्स एज ही बिकम टू ओल्ड टू मैनेज देम फॉर हिमसेल्फ। मिस्टर जेम्स ने अपने एक मैनेजर को रखा कि वो सारी खेती बाड़ी सब कुछ चीजों का ध्यान रखेगा, और देखा कि देखो मैं बूढ़ा हो चुका हूं, आई कांट मैनेज एवरीथिंग। मिस्टर सैमुअल आस्क्ड हिम टू ग्रांट हिम अ लीज फॉर द लैंड। उसने कहा कि सर मेरे नाम पे लीज कर दो, एक लाइसेंस लीज मिल जाएगा मुझे, तो मैं अपने राइट्स को वहां पे जो है इन्फोर्स करवा दूंगा। मिस्टर जेम्स एग्रीड टू इट एंड प्लेस्ड हिज थंब इंप्रेशन upon a deed which was in fact a gift deed of the land। उसने एक्चुअली वो लीज डीड पे साइन ना करवाते हुए गिफ्ट पे साइन करवा दिया। the deed would be void and inoperative, voidable, valid and inoperative, or it is illegal। yes, एक डॉक्ट्रिन मैंने आपको मेरे ख्याल से लास्ट सेशन में भी आपके साथ डिस्कस करी थी, दैट इज कैसे आप सी आंसर दे रहे हैं, बड़ा सोच समझ के जवाब दीजिएगा। नहीं नहीं नहीं, 152 में कहा जा रहा है, वेयर आर यू गोइंग? एग्रीमेंट देखो ना क्या हुआ है, गिफ्ट तो उसने किया ही नहीं। सवाल समझो, सवाल कह रहा है, जिसे मैं ऐसा उदाहरण आपको देता हूं कि मैं कहता हूं कि अब मैं कुछ एक काम है वो नहीं कर सकता, और आप जो है मेरे बिहाफ पे वो काम करो, मैं आपको रेम्यूनरेशन दूंगा, मैनेजर आप मेरे बन जाओ। आपने कहा कि सर मुझे आप ना अपनी प्रॉपर्टी लीज पे दे दो, आप मेरे पास एक लीज डीड बना के लाए, लेकिन एक्चुअली में वो लीज डीड थी ही नहीं, वो आपने गिफ्ट डीड तैयार करवाई, आपने मुझे दी और मेरा थंब इंप्रेशन उस पे ले लिया या सिग्नेचर ले लिए। तो आपने जो डॉक्यूमेंट पे मुझसे साइन करवाए और जो मुझे लग रहा है कि जिस डॉक्यूमेंट पे साइन कर रहा हूं वो दोनों अलग अलग चीजें हैं। मुझे ये लग रहा है कि मैं लीज डीड पे साइन कर रहा हूं और आप मुझसे किस पे साइन करवा रहे हो? गिफ्ट डीड पे। तो आप लोग अभी भी सही आंसर तक नहीं पहुंचे। मिस्टेक से रिलेटेड प्रिंसिपल है, मिस्टेक से रिलेटेड प्रिंसिपल है, एंड अल्टीमेटली देयर इज नो कंसेंसस एट आइडम, नो कंसेंसस एट आइडम। क्यों? द रीजन इज वेरी सिंपल, because the manager is getting the thumb impressions on the lease deed and the person is giving the thumb impressions on the gift deed, but ultimately दिमाग में कुछ और है। जो व्यक्ति साइन करवा रहा है वो गिफ्ट डीड पे साइन करवा रहा है, और जो कर रहा है उसको लग रहा है मैं लीज डीड पे साइन कर रहा हूं, तो देयर इज नलिफिकेशन ऑफ द कंसेंट, देयर इज नो कंसेंट ऑफ द पार्टीज एंड हेंस द एग्रीमेंट इज नॉट वॉइडेबल। मिस्टेक आ गया ना, तो मिस्टेक के प्रिंसिपल्स पे तो वॉइडेबिलिटी का कॉन्सेप्ट अप्लाई होता ही नहीं है। द कॉन्सेप्ट विल बी of option number A, that is the concerned agreement is void and inoperative। कितनी बार आप लोगों को मैंने एक मैक्सिम बताया है, लास्ट सेशन में भी बताया था, that is the maxim, that is the principle of non est factum, non est factum। whenever there is a mistake as to the documents, मिस्टेक एज टू द डॉक्यूमेंट्स, कंप्लीटली अगर उस व्यक्ति को नहीं पता है कि वो किस पे साइन उसके करवाए जा रहे हैं, तो यहाँ पे वो एग्रीमेंट जो डीड बना है वो वॉइड है और इनऑपरेटिव है। लेकिन वहीं से एक और छोटा सा प्रिंसिपल मैं आपके सामने रखता हूँ, जो नॉन एस्ट फैक्टम की डॉक्ट्रिन का थोड़ा सा एक एक्सेप्शन बनता है। अब उसमें एक एग्जांपल आपलोग अगर नोट्स बुक्स पढ़ेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे, होता है पढ़ना हो, दूसरा है ध्यान से पढ़ना, तो ध्यान से अगर पढ़ोगे, मिस्टेक वाला एरिया है, हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया होगा आई थिंक, यस, कि जब हमने फ्री कंसेंट वाले एरिया शुरू करने थे तो वहां पे मिस्टेक हम सबसे पहले पढ़ते हैं। तो जहां पे एक मैंने आपको चीज बताई थी कि हस्बैंड ने वाइफ से एक गिफ्ट डीड साइन करवाई, जिसमें उसने ये लिखवा लिया कि आप अपनी 4 प्रॉपर्टीज जो है वो मुझे गिफ्ट कर रही हैं। वाइफ ने देखा कि हस्बैंड मुझसे गिफ्ट डीड पे साइन करवा रहा है, उसने साइन कर दी, लेकिन बाद में हस्बैंड ने उसमें एक प्रॉपर्टी बाद में ऐड कर दी। तो ये जो हुआ है
ये एग्रीमेंट कंप्लीटली वॉइड नहीं होगा, लेकिन इट विल बी वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ W। तो ये कुछ एक प्रिंसिपल्स थे जो आप लोगों की कॉपीज में आप लोग देख सकते हैं। एवरीथिंग इज बीइंग डिक्टेटेड इन द क्लासेस, डिस्कस्ड इन इलैबोरेटली विद अ वाइडर डिस्कशंस, ठीक है। तो उसको एक बार गो थ्रू करिएगा। ये जो कंसर्न हमारे पास सिचुएशन था, ये नॉन एस्ट फैक्टम, कंप्लीट लैक ऑफ द कंसेंट की जब बात आती है तो एग्रीमेंट वॉइड और इनऑपरेटिव रहेगा, ठीक है। कमिंग टू द नेक्स्ट वन, here the mistake is in the nature of the promise, and अगर mistake nature of promise में होती है तो that is completely fine. क्वेश्चन नंबर 69 अगेन थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, ध्यान से समझेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे और उसके बाद जवाब देंगे। ऑप्शन क्वेश्चन है, X estate is sold for the areas of revenue under the provisions of Act of the Legislature. X estate is sold for the areas of revenue under the provisions of the Act of the Legislature by which the defaulter is prohibited from purchasing the estate. Estate Y, upon an understanding with X, becomes purchaser and agrees to convey the estate to X upon receiving from him the price Y has paid. The agreement is void as the object is unlawful, consideration is unlawful, it is going to defeat the object of the law, or both A and B. Yes, सवाल अगर समझ पाए तो बहुत अच्छी बात है। सवाल ये कह रहा है कि X estate is sold for the areas of revenue under the provisions of the Act of the Legislature by which the defaulter is prohibited from purchasing the estate. Y, upon an understanding with X, becomes purchaser and agrees to convey the estate to X upon receiving him a price which Y has paid. The agreement is void. Yes, because what is the ultimate object of this agreement? सवाल समझ पा रहे हो या नहीं समझ पा रहे हो? ऑप्शन नंबर सी पे आप लोग आ रहे हैं, वेरी गुड। ऑप्शन नंबर सी पे आ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, शिखा ने सेक्शन नंबर 23 को रेफर किया है, बिकॉज सेक्शन नंबर 23 says that if any contract or any agreement is there which is going to defeat the provisions of law, and here the provisions of law states what, कि कोई भी व्यक्ति जो एक डिफॉल्टर है जिसने पैसा नहीं दिया वो अपनी प्रॉपर्टी को दोबारा नहीं खरीद पाएगा। तो इस केस में हुआ क्या कि एक प्रॉपर्टी थी, गवर्नमेंट के लैंड रेवेन्यूज जो थे, जो एरियाज ऑफ रेवेन्यू थे, वो नहीं मिले, तो गवर्नमेंट ने वो प्रॉपर्टी बेच दी। एक वाई नाम की वो व्यक्ति ने वो प्रॉपर्टी खरीदी और एक्स और वाई के बीच में कॉल्यूजन हुआ और वाई ने एक्स को कहा कि जितना पैसा मैंने दिया उतना पैसा मुझे दे दो और प्रॉपर्टी वापस खरीद लो। सो दैट इज बेसिकली यू आर गोइंग टू डिफीट द प्रोविजंस ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑफ द लॉ, बिकॉज द ऑब्जेक्ट ऑफ द लॉ इज द लेजिस्लेचर इज इंटेंडेड that the defaulter is prohibited from purchasing such estate. ठीक है, जो भी व्यक्ति डिफॉल्टर है वो अपनी प्रॉपर्टीज वापस नहीं खरीद पाएगा। सो ऑप्शन नंबर सी is the very fine answer, right answer. Coming to the next question, question number 70. Mr. A was entered into a contract with a broker that he should purchase the shares of a particular company at a premium so as to include a public belief that the shares were worth of being brought at a premium. Later, he discovered that the broker had sold his own shares to him and had brought no shares in the market at all. Mr. A applied for the court for the rescission of for the fraud committed by him. ठीक है, सवाल कह रहा है, दोबारा से पढ़ रहा हूँ। Mr. A entered into a contract with the broker that he should purchase the shares of a particular company at a premium so as to induce a public belief that shares were worth of being brought at a premium. एक व्यक्ति है, उसने एक ब्रोकर के साथ एक एग्रीमेंट कर लिया। ब्रोकर ने उसको कहा कि जनाब ये वाले शेयर ले लो, बहुत अच्छे हैं, प्रीमियम पे बिक रहे हैं, ताकि उसको ये लगा कि जब ये व्यक्ति खरीदेगा तो मार्केट में एक परसेप्शन बनेगा कि ये शेयर की वैल्यू ज्यादा है। बाद में ये डिस्कवर होता है कि ब्रोकर ने उसको अपने ही शेयर बेच दिए थे और मार्केट में उसने कोई बाद में शेयर नहीं खरीदे। सो मिस्टर ए अप्लाइड फॉर द रिसेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। उसने कहा कि सर मेरा फ्रॉड हुआ। Options हैं, Mr. A is entitled to the relief, no relief would be granted to him, Mr. A can resign the contract and claim the damages, and the last one is both A and C. Yes, is any relief can be granted to Mr. A?
देखो यहाँ पे आप एक चीज को समझे, मेरे ख्याल से आप सवाल को भी ठीक से समझ नहीं पाए। उसका ये कहना है ना दैट मिस्टर ए ने जब ब्रोकर के साथ एग्रीमेंट किया और उसने कहा कि सर जब आप प्रीमियम पे शेयर खरीदोगे तो पब्लिक को हम इंड्यूस करेंगे कि ये शेयर्स प्रीमियम पे बिक रहा है। गेटिंग माय पॉइंट? Mr. A was entered into a contract with the broker that he should purchase the shares of a particular company at a premium so as to induce the public. Induce का मतलब किसी को प्रभावित करना। Induce the public belief that the shares were worth of being brought at a premium. उसने कहा कि सर जब आप खरीदोगे तो पब्लिक को भी लगेगा कि ये शेयर्स प्रीमियम पे, महंगे रेट पे खरीदने के लायक हैं। बाद में ये डिस्कवर हुआ कि ब्रोकर ने उसको अपने शेयर बेच दिए। तो यहाँ पे मिस्टर ए को क्या रिसेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के लिए वो एलिजिबल है या नहीं, ये सवाल पूछ रहा है। यस, नाउ गिव मी द आंसर। क्या मिस्टर ए को कोई रिलीफ मिलना चाहिए? चलो मैं एक्सप्लेनेशन पे आता हूं डायरेक्टली। देखो यहाँ पे पब्लिक के साथ फ्रॉड करने की बात कहीं ना कहीं हमें दिखती है। द ऑब्जेक्ट ऑफ द एग्रीमेंट वाज टू कमिट फ्रॉड ऑन द पब्लिक because broker was directed to buy shares in order to cheat and mislead the public. The broker was directed to buy shares in order to cheat and mislead the public. The agreement was for the fraudulent purpose and hence it is void and no relief would be given to Mr. A. ठीक है? So it is to be seen कि वहां पे जैसे उन दोनों के बीच में जो एग्रीमेंट था वो पब्लिक को मिसलीड करने वाले थे कि जब मैं शेयर्स खरीदूंगा तो आप फिर और भी लोगों को ये शेयर्स बेचना, ताकि पब्लिक को भी ये लगे कि ये शेयर महंगे रेट पे खरीदा जा सकता है। सो ऑप्शन नंबर B is the right answer because ultimately those persons are going to defraud with the public and hence the agreement is void as per section number 23 of Contract Act. अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 21। कसक यहाँ पे कह रही है सर लेट द बायर बी अवेयर। लेट द बायर बी अवेयर का यहाँ पे मसला नहीं है। जो दो लोगों ने एग्रीमेंट किया उन दो लोगों के बीच की एग्रीमेंट की बात है कि उन्होंने एग्रीमेंट जो किया उसमें वो पब्लिक को डिफ्रॉड करवाना चाहते थे। बात ब्रोकर ने उस व्यक्ति के साथ ही फ्रॉड कर दिया। बेसिकली जैसे मान लो मैं ये कहता हूं कि आप ये चीज करो, फिर बाद में हम पब्लिक को फ्रॉड करेंगे, ठीक है? क्योंकि पब्लिक के माइंड में एक परसेप्शन क्रिएट होगा कि इस व्यक्ति ने ये एग्रीमेंट किया है तो बाकी भी करेंगे। तो अल्टीमेटली the thing is not that the buyer should be aware, rather the point is what is the contract between Mr. A and B. तो यहाँ पे जो जिस व्यक्ति ने शेयर खरीदे और बाद में ये डिस्कवर हुआ कि ब्रोकर ने उसे अपने शेयर बेच दिए ना, वो कहता है कि सर मेरा कॉन्ट्रैक्ट रिसाइन कर दो। So why we should resign? Because ultimately you are going to defraud a public at large. And hence section number 23 के अंदर प्रिंसिपल चला जाएगा। तीसरे व्यक्ति की यहाँ पे बात ही नहीं है, ठीक है? तीसरे व्यक्ति की कोई बात नहीं है। जैसे मान लो मैंने आपके साथ एग्रीमेंट किया कि आप एक फलानी गाड़ी है, मैंने वो गाड़ी ऐसे बेकार सी गाड़ी है, आप उसको खरीद लो। जब आप खरीदोगे तो हम फिर मार्केट में भी एक परसेप्शन क्रिएट होगा कि यहाँ से बहुत अच्छी गाड़ियां जो है वो बिकती हैं। सो बाद में मैंने आपको मान लो खुद ही एक बेकार सी कार अपनी गाड़ी बेच दी। सो अल्टीमेटली जब आपको ये पता लगा कि सर ने अपनी गाड़ी बेच दी है तो आप बाद में आगे कि रिसाइन करो कॉन्ट्रैक्ट। व्हाई वी शुड रिसाइन? बिकॉज अल्टीमेटली the purpose of the parties was to defraud the public at large। तो सेक्शन नंबर 23 के अंदर मैटर चला जाएगा और वहां पे ये आ जाता ना, if the parties are going to defraud or it is against the public policy or it is going to defeat the provisions of law etc, so the agreement is unlawful, hence it is void। तो तीसरे व्यक्ति के साथ अभी नुकसान नहीं हुआ। अगर तीसरे को नुकसान होगा तो वो एक अलग विषय है, लेकिन यहाँ पे मेरे और आपके एग्रीमेंट की बात हो रही है। क्लियर? अगला सवाल है an agreement to give a loan of rupees 1,50,000 to B who was a bar dancer. The object of the loan was to teach singing and dancing to her own daughters. The agreement was void because it is immoral, voidable, valid or unlawful. Yes. सवाल समझो, बहुत सिंपल। An agreement, A agreed to give loan of rupees 1,50,000 to B who was a bar dancer। और लोन देने का मकसद क्या है कि वो अपने बच्चों को गाना और डांस सिखाए, ठीक है? The agreement is void, voidable, valid और unlawful। Yes, ठीक है? So as you people are giving me the answer, that is option number C, that is the agreement is valid, very much right answer। Option number C is the right answer। The reason is ये एग्रीमेंट में कोई भी
इमोरल चीज हमें नहीं दिखती है, ठीक है। द एग्रीमेंट इज नॉट टेंटेड विद इमोरलिटी एंड हेंस द एग्रीमेंट इज वैलिड, देयर इज नो डिफिकल्टी इन दैट। अगला सवाल, ए प्रॉमिसेस टू गिव मनी और मनीज वर्थ upon the determination or ascertainment of an uncertain event would be a future contract, a wager, a contingent contract, or a guarantee. A promise to give money or money's worth without any determination or ascertainment of an uncertain event would be what? ऑप्शन नंबर सी पे आप लोग जा रहे हो, सिर्फ अनसर्टेन इवेंट को देखते हुए कंटिंजेंट में क्यों चले जाते हो? यस, merely on the ground that there is an uncertain word is written in the question, don't follow section number 31 32, ठीक है। वहीं पे डायरेक्टली कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट में नहीं जाना है, रेदर बाकी एस्पेक्ट्स को भी एक बार देखिए क्या लिखा हुआ। चलो मैं वैसे तो इसका राइट आंसर वेजर है, अ प्रॉमिस टू गिव मनी और मनीज वर्थ upon the determination or ascertainment of an uncertain event जब आ गया ना, so it means you are not at all interested in the event, rather you are interested in the win and the lose, so it is related with the concept of the wager। लेकिन मैं एक jurist है, उनकी quotation को साथ में रखूंगा। The quotation was given by Sir William Anson, और उन्होंने वेजर को डिफाइन किया, ठीक है। वेजर को जब डिफाइन किया तो कुछ इस तरीके से उन्होंने कहा, आई एम रीडिंग इट, ख्याल से आप लोग देख पा रहे होंगे। इट इज रिटन दैट सर विलियम एंसन डिफाइंड वेजर एज अ प्रॉमिस टू गिव मनी और मनीज वर्थ द डिटर्मिनेशन और ascertainment of an uncertain event. It is essential for the wager that the contract that each party under it may either win or lose, whether he will win or lose being dependent upon the issue of the event, and therefore the remaining uncertain until the issue is unknown. If either of the parties may win but cannot lose, or may lose but cannot win, is not wagering. So ये पूरा का पूरा जो quotation है that is being given by Sir William Anson, तो ये जो हमने अभी बात करी ये वेजर से रिलेट करती है कि एक व्यक्ति का दूसरे को प्रॉमिस करता है कि मैं आपको ये चीज दूंगा अगर ये चीज होती है, ठीक है, और नहीं दूंगा अगर ये नहीं होता है। सो दैट विल बी ascertainment ऑफ एन अनसर्टेन इवेंट की जब बात आती है तो ये वेजर से हमें रिलेट करना है। विलियम एंसन की इस कोटेशन को आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सब्जेक्ट ऑफ द वेजर इज डिटर्मिनेशन ऑफ द इवेंट, चांस ऑफ विनिंग और लूजिंग, द एक्यूरेसी ऑफ पर्सन्स जजमेंट, or knowledge of uncertain event which must happen. Yes, what is the subject matter of wager? फिर गड़बड़ करोगे। Subject of the wager. ठीक है, ये आंसर आप लोग जो है सभी लोग सही आंसर पे नहीं पहुंच पा रहे हैं। सो लेट मी कम टू द एक्सप्लेनेशन टू दिस क्वेश्चन। देखो जहां तक विन और लूज की बात है, it is an essential element of the wager, no doubt there is a chance of winning or losing, but how you are getting that chance, that is important, ठीक है, how you are getting that chance. So option number C is my right answer था, that is the accuracy of the person's judgment and not the determination of the event, ठीक है। मैं उस पे आ रहा हूँ, that an event may be uncertain but need not to be a future event. The parties may wager about the qualities or attributes of existing things or results of the events already occurred when they both do not know about these. The subject of the wager is then the accuracy of each person's judgment and not the determination of the event. देखो आपने मान लो दो रेसलर्स हैं जो रेसलिंग कर रहे हैं, आपने कहा कि फलाना जीतेगा, एक ने कहा फलाना जीतेगा। So why you are putting your bet over one person? Because you believe that that person will win, and your belief is
on the basis of your judgment. ठीक है, so the subject of the wager is the person's judgment. ठीक है, तो उसके आधार पे डिपेंड करता है कि आपको वो पैसा मिलेगा नहीं मिलेगा. No doubt wagering agreements are not enforceable, but yes, the subject or matter of the wager is what? That is the accuracy of each person's judgment. अब chance of winning or losing तो है ही, लेकिन it is not the basic subject of the wager, rather the basic subject of the wager is something different. ठीक है, so that the right answer is option number C. चलिए second last question for today. X enters into a contract with Y to pay him a sum of rupees 20,000 if Chennai Super Kings wins the trophy, while Y pays rupees 40,000 if Chennai Super Kings does not win. It is a contingent contract, wagering contract, voidable contract or a valid contract. Yes, चलिए ये आपके आईपीएल पे सवाल आधारित, बड़ा सोच समझ के जवाब दीजिएगा. X enters into a contract with Y to pay him a sum assured of 20,000 if Chennai Super King wins and wins the trophy, while Y pays 40,000 if Chennai Super Kings does not win. So it is a wagering contract. Very good. It is the wagering contract. ठीक है. Last question है that which of the following case is related to a blue pencil rule? Which of the following case is related to a blue pencil rule? Bell versus Lever Brothers Limited, Collier versus Hasty, Atwood versus Lamont, and Smith versus Hughes. Yes. Blue pencil rule. Any guess or any other thing which you have? ठीक है, सो पहले तो मैं आपको ये क्लियर करता हूँ कि ब्लू पेंसिल रूल है क्या. देखो, ब्लू पेंसिल रूल एक एटवुड वर्सेस जो लेमॉन्ट का केस है, इस केस में इंग्लैंड की कोर्ट्स ने एक रूल दिया था, दैट इज अ ब्लू पेंसिल रूल. और उसमें इन्होंने कहा कि कभी-कभी अगर कॉन्ट्रैक्ट अगर सिवियर हो सकता है, मतलब एक कॉन्ट्रैक्ट को अगर दो हिस्सों में विभाजित किया जा सकता है, डिवाइड किया जा सकता है, तो हम एक हिस्से को अगर इन्फोर्स कर सकते हैं और दूसरे को नहीं कर सकते. सो एंड इफ इट इज पॉसिबल बाय द रूल ऑफ सिवेरेंस, तो उसको ब्लू पेंसिल रूल के नाम से जाना गया. कि इफ मैं अगर आपको इसको लिखना चाहता हूं तो लिख भी सकते हो कि ब्लू पेंसिल रूल का मतलब क्या है, दैट द पोर्शन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइड और अनएनफोर्सेबल एंड द पोर्शन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट इज वैलिड एंड इनफोर्सेबल. तो अगर एक हिस्सा कॉन्ट्रैक्ट का वैलिड और इनफोर्सेबल है, दूसरा वॉइड और अनइनफोर्सेबल है, तो दोनों को अगर अलग अलग किया जा सकता है, सिवियर किया जा सकता है, सो दैट कैन बी डन. और हम इनफोर्सेबल वाले हिस्से को वैलिड वाले हिस्से को एग्जीक्यूट कर सकते हैं, आगे बढ़ा सकते हैं. सो एटवुड वर्सेस लेमॉन्ट बहुत इंपॉर्टेंट है. एटवुड वर्सेस लेमॉन्ट, it was held that the blue pencil rule severance can be affected when a part severed can be removed by running a blue pencil through it. So ये एक मतलब था blue pencil rule का कि आप अगर एक कॉन्ट्रैक्ट को दो हिस्सों में डिवाइड करके एक की एग्जीक्यूशन और दूसरे को एग्जीक्यूट अगर नहीं करना है, if it is possible you can go for this. Yes, is it clear to everyone? Yes sir. ठीक है. सो बस इसका ध्यान रखिएगा, ये ब्लू पेंसिल रूल कभी कभी पूछ लेते हैं कि कौन से केस लॉ से रिलेट करता है या अदरवाइज इसका मतलब क्या है. तो सिवेरेंस का प्रिंसिपल है, हाफ ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट इज वैलिड, हाफ ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइड, हाफ ऑफ द इट इज इनफोर्सेबल, हाफ इज नॉट, एंड इफ इट कैन बी सिवियरेबल, क्योंकि हर कॉन्ट्रैक्ट सिवियर नहीं हो सकता. तो अगर उसमें विभाजन करने का, डिवाइड करने का पॉसिबिलिटी है, अलग अलग करके आप उसको इंटरप्रेट कर सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट को, और अलग अलग करके वॉइड वाले हिस्से को छोड़ के वैलिड वाले हिस्से को अगर इन्फोर्स कर सकते हैं, तो इट कैन बी डन. सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे सेशन. ठीक है, अभी हमारे इसमें लास्ट एक कॉन्ट्रैक्ट का सेशन और बचेगा, दैट विल कंटिन्यू टुमारो. ठीक है, तो बाकी के जो क्वेश्चंस हैं, आज हमने क्वेश्चन नंबर 75 तक किए, बाकी रिमेनिंग क्वेश्चंस विल कंटिन्यू टुमारो.